بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. حقیقت چھپ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. پاکستان پورا اس وقت گہما گہمی اور بڑی شور و شرابہ چل رہا ہے. بہت ہی ماشاءاللہ الیکشن کمشنر کا آرڈر بھی چل رہا ہے، اور الیکشن کی چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی اس کا آرڈر جو تھا کہ ایٹل ہے وہ فیصلہ. بڑی اچھی بات ہے. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو الیکشن کرایا جا رہا ہے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ بہت عمدہ سوچ ہے، بڑی اچھی، اور الیکشن کی ضرورت تھی. اور آپ نے جو الیکشن کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اس میں بڑی کامیابیاں ہو رہی ہیں، بڑی طاقت اور استعمال ہو رہا ہے. خاص طور سے جو آپ لوگوں نے ایک بڑی کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے 21 مئی کو ایک بڑے وی آئی پی کو لایا گیا ہے. اس وی آئی پی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا در در پھر رہا ہے، اور اس کے ایک کوئی شخص اس کو لائک نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، پاکستان کا لوٹنے والا، 40 سال سے لوٹ کے ڈاکو، چور، بدماش، نمبر 1. نمبر 2، زرداری مافیا ورلڈ ٹاپ لیڈر آف دا ورلڈ، کرپشن مافیا کا چیف آف دا ورلڈ ہے. یہ دونوں بھی بڑے اعلیٰ قسم کے ڈاکو، چور، بدماش ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو سارے ڈاکو، چور ہیں، بدماش ہیں، سارے لٹیرے ہیں. پاکستان کو لوٹ کے تباہ کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے 21 مئی کو اس طرح لائے کہ جیسے وہ تمہارا باپ ہو. وہ اپنے فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ جوڑے ہوئے، مائی باپ آئے ہیں، سرکار آئے ہیں. دوسرے وہ اپنے آج جاتے ہیں زرداری صاحب، کیا بات ہے ان کی. وہ بڑے مزے کی باتیں یہ ہیں کہ الیکشن بڑے اعلیٰ طریقے سے کرایا جا رہا ہے، لیکن الیکشن میں صرف پارٹیسپیشن جو دیا جا رہا ہے وہ پوری پارٹیوں کو، سب کو الیکشن کی اجازت. اگر اجازت نہیں ہے تو اس شخص کی نہیں ہے کہ جس کو کہ پوری ورلڈ جو ہے اپنا ٹاپ آف دا لائن لیڈر سمجھتی ہے، دنیا اس کی عزت کرتی ہے، ریسپیکٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ وہ جو پہلے وہ تھے اپنے بندیال صاحب، اور اپنے یہاں باجوہ ڈاکٹر ہیں جو دنیا کا مافیا بھی ہے اور ٹاپ آف دا بدماشوں میں، گنڈوں میں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو قادیانی ہوتے ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں ہمارے، تاکہ اس ملک کو انہوں نے چونکہ تباہ کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ملی ہوئی ہے، یہ تمام ججز بھی ملے ہوئے ہیں، ان سے مال کھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا انہوں نے، اور پاکستان کو یہ سارے مل کے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. خاص طور سے جب باجوہ نے شروع کیا سلسلہ، وہ یہی ہے کہ وہ قادیانی بھی ہے، یہودی بھی ہے، اور دولت کا پجاری بھی ہے. پاکستان کی تباہی کا جو ریزن ہے وہ سب سے بڑا ایک یہ ہے، جو 9 اپریل کو رات کے 12 بجے بندیال اور یہ ہمارا جو باجوہ ہے، انہوں نے اسمبلی کو توڑ کے عمران خان کو ہٹا کے، اور وہ خود جناب اپنے ان کو ڈاکوؤں کو، چوروں کو، بدماشوں کو، جو زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، زرداری، سارے ڈاکوؤں کو اٹھا کر کے رات کو لا کر کے ملک میں بٹھا دیا. اور ان کو ملک تباہ کرنے کے بعد جب ملک تباہ ہو گیا تو اس کو چھٹی کر دی گئی، پی ڈی ایم کو. پھر اس کے بعد میں
दूसरे जो आते रहे, एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, एक काकड़ आ गया वहां से, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के ले आए, एक वो डाकू को इसको प्राइम मिनिस्टर बना के ले आए। ये सारे काम जो किए जा रहे हैं, पहले इनको करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया खर्च किया जाता है, और खर्च करने के बाद में इनको, इमरान खान जो जब तक यहाँ रहा तो पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, खुशहाली भी थी पूरी दुनिया में, इट वाज वंडरफुल, हालात बहुत अच्छे हो रहे थे, लोगों को गुर्बत से निकाला जा रहा था। सिर्फ 3.5 साल में यहाँ पर ला करके बिठाया है। अभी वो इलेक्शन में तैयारियां करा के सबको बाजार में निकाल दिया। अगर नहीं निकाला है तो इस वक्त का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसको जो अपना इस वक्त जो काम कर रहा है, उसने अभी तक इनको 4 महीने से जेल में रखा हुआ है, और उसके ऊपर 200 केसेस लगाए हुए हैं, जो सारे फ्रॉड, सारे झूठे, क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम जो चल रहा है, ये सारे झूठ लोगों का, गुंडों का, बदमाशों का, डाकुओं का राज चल रहा है। और ये भी, बल्कि इससे भी बड़ी हरकतें हो रही हैं, और पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। एक सिस्टम नहीं रहा, कोई कानून नहीं रहा, कोई इंसाफ नहीं रहा। एक ईमानदार ज़िम्मेदार आदमी, जो पॉपुलर आदमी है, इंसानियत रखने वाला आदमी है, बहुत शरीफ किस्म का आदमी है, उसको इस सर्दी में भी उसको जेल में रखा हुआ है। और हमारे चीफ जस्टिस को, हमारे जजेस को, हमारे ये जितने भी बैठे हुए हैं, पुलिस है, डाकू हैं सारे, जितने ये अपना चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर है, ये जो बाजू ने इसको ला के लगाया, वो अपना इसका बाप है, वो जरदारी माफिया का बाप है, जरदारी माफिया उसका बाप है। और यहाँ का एक वो जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, वो भी इसका बाप है। इसके कितने बाप हैं, और सबसे ज्यादा हरामी भी वही है, बेगैरत भी वही है। आईजी पंजाब भी बेगैरत है। पंजाब के जितने भी आदमी है, सारे बेगैरत लोगों को ला के लगाया। ये इनको दिया गया था केयर टेकर, वो हरामजादे हुकूमत अपनी बना के माल लूट रहे हैं, खूब लूट लूट के तबाह बर्बाद कर दिया। और जो एक आदमी डिजर्व करता है, उसको आज तक आपने उसका बल्ला भी छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने छीना है। हमारे यहाँ जितने अदलिया में बैठे हुए सारे डाकू चोर बदमाश, हमारे यहाँ जितने भी गए अपने सिस्टम बनाने वाले बैठे हुए, सारे पेशावर से लेकर के कराची तक तमाम आईजी, पुलिस, डाकू, सारे डाकू, सारा सिस्टम डाकू, ये बना करके आप ये इलेक्शन करा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशनर, आप आईजी पुलिस पंजाब, अपना चीफ जस्टिस, वो जो सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट, वो सारे लगे हुए हैं, और इमरान खान को अभी तक कैद-ओ-बंद में रखा है। सर्दी में उसको जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, सर्दी में इतना हालम है कि वो आदमी वहां ठिठर रहा है, उनकी टांग में तकलीफ हो रही है, जिसमें नवाज शरीफ ने गोली लगवाई थी। जुल्म करने वाले जो है वो आराम से घूम रहे हैं और अपने जलसे कर रहे हैं, जिनको एक वोट कोई देने वाला नहीं है। जुल्म इंतहा जो होती है, तो कुदरत का कानून है ये कि आप लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, और आप बचेंगे नहीं। अपने इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि आपका सफाया कर दिया जाएगा। जो भी जुल्म करेगा वो सोच ले, इमरान खान के खिलाफ तो इमरान खान फरिश्ता सीरत इंसान है, मोहब्बत करने वाला इंसान है। इंसान वो है जो कि दुनिया में वर्ल्ड में पहचाना जाता है। पाकिस्तान में न तरक्की हो सकती है, बल्कि जवाल ही जवाल है। भेड़ियों का राज होगा, सुअर लोग जो हराम का खा रहे हैं, वो उनका गरीब आदमी का पैसा, गरीब आदमी पे टैक्स लगाते हैं, खुद एक अय्याशी करते फिर। जुल्म करने से आप बच नहीं सकते किसी भी अजियत से। अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है। और ये जो इलेक्शन करने के लिए उसको बल्ले का निशान भी उनसे ले लिया है। कौन है ये हरामजादा बेगैरत आदमी, जिसको शर्म नहीं है कि सारे उनको चोरों को, डाकुओं को तो आपने वो दिया हुआ है,
एक शरीफ आदमी को आप वो नहीं दे रहे, इलेक्शन के लिए कोई रास्ता नहीं दे रहे, बाहर नहीं निकलने दे रहे, और उससे बल्ले का निशान भी छीन लेते हैं। उसके अलावा उसके आदमियों को पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, औरतों के जलील कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? अल्लाह ताला का निज़ाम मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। आप लोग आप कादियानी तो करो, अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है, न वो अपने पैगंबर को मानते हैं, न इंसान को मानते हैं। जुल्म करने के लिए वो बहुत बेहतरीन वो लोग हैं। सारी आपने कादियानी और उनको गद्दारों को रखा हुआ है। इसराइल का भी आप लोग साथ देते और उसका भी साथ देते, इसलिए कि वो सब गद्दार है और आपके लिए बहुत मुफीद है। ऐसा कतल नहीं होना चाहिए। इमरान खान को फौरन जेल से बाहर निकालना चाहिए, उसको कैंपेन में चलानी चाहिए, और उसके अलावा ये कि बल्ले का निशान भी दीजिए, इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। अल्लाह ताला आपको इंसाफ के बदले में शायद आपको माफ कर दे। बेहतर यह है कि फौरन इनको छोड़ा जाए और इमीडिएटली छोड़ा जाए, इसलिए कि वो तकलीफ में है, अजियत में है। अगर इतनी अजियत आप पहुंचाएंगे तो आप अपना सबका अंजाम खराब हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप इनके लिए इमीडिएटली इलेक्शन में उनको बल्ले का निशान भी दीजिए और उनको पूरे इलेक्शन लड़ने की पावर होनी चाहिए और बाहर निकालिए उनको। और चूंकि बहुत जुल्म हो चुका है, पूरी वर्ल्ड में शोर मचा हुआ है, सब जानते हैं, आपका इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। चल नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं चल सकते, कोई कामयाबी नहीं हो सकती। आपको जितना नुकसान पहुंचाएंगे, जितना आप जलील करेंगे, उतना उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला आपको जलील करेगा, क्योंकि कुदरत का कानून यही है, आप उसके खिलाफ काम नहीं कर सकते। आप अभी देख लीजिए, हमारी फौज के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको भी आप वरगला रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, जंग करा रहे हैं आप अवाम की और उनकी। अवाम बाहर निकल के आएगी। अगर अवाम ने GST पे ऑर्डर कर दिया, फर्ज करो वो हमला कर दिया, आप बचा सकते हैं उसको? नहीं बचाएंगे। अवाम परेशान है, गुस्से में है, तकलीफ में है, क्योंकि हर आदमी तकलीफ में है। अगर आप अजियतें पहुंचाएंगे, इसी तरह लोग आपसे नाराज होंगे, इसी तरह आपसे तकलीफ में होंगे। आपका फौजी एक आदमी बाहर नहीं निकल सकता है, लूट मार कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब फौजी है वो बेचारा मर रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको कत्ल हो रहा है, आप अय्याशी कर रहे हैं। और फिर आप बड़े दावे करते हैं कि हमारी फौज बड़ी ताकतवर है। फौज ताकतवर थी, हमने ताकतवर बनाई थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक बार और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इमरान खान को फौरन बाहर निकाला जाए। तमाम जजेस को ऑर्डर होना चाहिए कि ईमानदारी से, इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर होना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम कराएं, और जितने भी लोग हैं ईमानदारी से काम कराएं, और आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हर शख्स को इंसाफ होना चाहिए। इस तरह आपका इलेक्शन कामयाबी में हो जाएगा, लेकिन आपका एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। आपके जितने पैसे दौलत आप जो खर्च कर रहे हैं वो भी ज़ाया हो जाएगा। आप लोगों से बहुत सारे आपके अपने लोग जो है नाराज, अपने लोग बेजार हैं, आपस में फौज में भी दुश्मनी आप कराएंगे। हमारी फौज को एक उसमें रहने दीजिए, हमारी फौज को कामयाबी के साथ चलने दीजिए। हमारा ये जो कम से कम इलेक्शन आप करा रहे हैं, तो हमारी ये जो आर्मी को हमने वो बनाया है बाकायदा, अपना इंटरनेशनल 7th बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, आप लोग उसको खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उसके अंदर फूट डाल रहे हैं। लोग फौजी भी नाराज हैं आपसे, जो जरूरत फौजी इमरान खान को मांगते हैं, वो भी आपकी किसी भी इन लीडरों को सबको जानते हैं, सब करप्शन है। एक गरीब आदमी भी जिसको जेल में आपने जिल्लत भेजे, सब कुछ करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसे उतना ही बुलंद कर दिया है। आप उनका फौरन जेल से निकालें, इस वक्त तकलीफ में, अजियत में है। इमरान खान के लिए हम सब दुआ करते हैं, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दुआ कर रही है। आपने उनको तकलीफ से, अजियत से वो किया हुआ है और अभी तक वो नहीं छोड़ा है। इस वक्त वो बीमार है, वो तकलीफ में है, उनकी टांग में तकलीफ है, जिस टांग में उसने
حرامزادے نے نواز شریف نے باقاعدہ اسی نے مروایا تھا، اسی نے فائر کروایا تھا، وہ چاہتا تھا یہ اس کو ختم کرنا. یہ قاتل ہے، راشد ہے، راشی ہے، بدماش ہے، ہنڈا ہے، لوٹ مار کرنے والا چور بدماش. اس کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا گیا. فوراً چھوڑ دیجیے عمران خان کو اور امیڈیٹلی الیکشن کرنے کی پوری فل آف فلیج ان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.